Hello everyone. Today we discuss about lesson number 7, outcomes of democracy. First of all, I tell you about the overview. As we begin to wind up our tour of democracy, it is time to move beyond our discussions of specific theme and ask a general set of questions. What does democracy do? Or what outcome can be responsible except of democracy? Here, first of all, I want to tell you about how do we assess democracy's outcomes. Assessment of democracy's outcome. First of all, political outcomes, then economic outcomes, then social outcomes. In the political outcome, accountable government. First point is accountable government. Over there mean to say government always accountable for each and every work. फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग हैपन्ड इन द कंट्री, कुछ भी गुड एंड बैड होता है, एट दैट टाइम गवर्नमेंट ऑलवेज अकाउंटेबल ओवर देयर. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट मेन थिंग विच वी कैन से दैट. सेकेंड, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट. वही मैंने अभी बोला, जैसे नाउ आर डेज फार्मर्स लोग एजिटेशंस कर रहे हैं, एक बिल पास किया गया उसको लेके. For that purpose, we always think about that government always responsible for their. Means सरकार हमेशा रिस्पॉन्सिबल होती है इस बात के लिए. तो जो भी सही या गलत कंट्री में होता है, इन डेमोक्रेटिक कंट्री, द गवर्नमेंट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन. इज दैट क्लियर? देन legitimate government mean to say what happening is wrong over there, government always improve such kind of the conditions over there. For example, I want to tell you, if some of our expectation are not met, we start blaming in the idea of democracy. ये responsible में आ जाएगा. और we start doubting, हम उन पे डाउट करना शुरू कर देंगे. If we are living in a democracy, the first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy. अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो इट्स आर ड्यूटी टू आउटकम ईच एंड एवरी रॉन्ग थिंग्स फ्रॉम देयर. is to recognize that democracy is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. The citizens have to take advantage of these conditions and achieve these goals. Let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. Now, accountable, responsible, legitimate government, I told you about that. Here, there are some things that democracy must provide. In the democracy, we are most concerned with ensuring the people will have the right to choose their rulers. हम लोगों को पूरा अधिकार है कि हम अपने रूलर्स को चूज़ करें, एंड पीपल विल हैव कंट्रोल ओवर द रूलर्स. और हमारा पूरा अधिकार है कि हम उन रूलर्स को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर वो कोई मिसयूज़ कर रहे हैं पार्टी का, वी ऑलवेज थिंक अबाउट दैट फर्दर नेक्स्ट इलेक्शंस वी विल नॉट choose such kind of the people over there. Is that clear? So here the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizens and responsive to the needs and expectation of the citizens. मतलब जो है गवर्नमेंट अकाउंटेबल, लोग हम नागरिक अकाउंटेबल हैं आज की सरकार में, क्योंकि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए हैं. अगर वो हमें नहीं हमारी बात पूरी नहीं करते, हमारी नीड्स नहीं पूरी करते, एक्सपेक्टेशन, तो हम उनको चेंज भी कर सकते हैं. तो उनके लिए ज़रूरी है वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरे. इज़ दैट क्लियर? बिफोर वी गो इनटू द क्वेश्चन, वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन, इज़ द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एफिशिएंट? क्या वो एफिशिएंट है? इज़ इट इफेक्टिव? सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूस लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट. कुछ लोग सोचते हैं कि ये कम इफेक्टिव है. ऑफ कोर्स it's true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberations in assemblies or worry about the majorities and public opinions. अगर एक बंदे का राज है तो वो बॉदर ही नहीं करता कि यहाँ पे किसी की मेजॉरिटी है कि नहीं है, कोई उनके साथ खड़ा है कि नहीं, सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ना ही वो पब्लिक ओपिनियन की परवाह करता है. सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट टू टेक डिसीजन. जब एक बंदे ने डिसीजन लेना होता है तो वो इमीडिएटली उस डिसीजन को ले लेता है और इम्प्लीमेंट कर लेता है. लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशंस एंड नेगोशिएशंस.
डिस्कशंस करके, बातचीत करके, उसके बाद वो मतलब कुछ टाइम डिले करने के बाद फिर डिसीजंस लिए जाते हैं. थोड़ा लेंथी है बट वी कैन टेक गुड डिसीजन ओवर देयर. इज दैट क्लियर? So let us think. The item of consist is imagines a government that may take decision very fast, but it may take decision that are not accepted by people and may therefore face problem. अगर हम इमीडिएटली मान लो कि सरकार बोले हम भी एक अथॉरिटी पीपल की तरह जल्दी से जो है डिसीजन ले लेते हैं, तो ये जो डिसीजन होगा वो हो सकता है सारे लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है लोग इसको एक्सेप्ट ना करें. इन कंट्रास्ट द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग अ डिसीजन. हमारे सामने डिसीजन आने से पहले वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, डिस्कस करते हैं, बट बिकॉज इट हैज़ फॉलोड प्रोसीजर्स इन डिसीजन मे बी बोथ मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव. हो सकता है अगर आप ज़्यादा टाइम लेके डिस्कस करके उस चीज़ को बनाओगे तो हो सकता है लोग उसको एक्सेप्ट ना करें या एक्सेप्ट भी कर लें. ठीक है. सो नाउ look at the other side. Democracy ensure that decision making will be based on norms and procedures. Democracy norm and procedure के बेस ही होनी चाहिए. Citizen who want to know if decision was taken through the correct procedure. अगर decision correct procedure से लिया जा रहा है तो वो better होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी होती है. पर्सन मस्ट नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. लाइक अभी फिर हम मौजूदा हालात पे चलते हैं. मोदी ने एक बिल पास करना था, सबसे पहले मीडिया के सामने उसने अपने व्यूज़ पेश किए, उसके बाद लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया जिससे कि लोगों के ओपिनियन उसको पता चल गए. अब उसमें जो कमी पेशी होगी वो उसको थोड़ा बहुत चेंज करके अमेंड करके उसको कर देगा पास. सो दिस इज़ द प्रोसेस in the political outcomes. Is that clear? So further we will discuss in next video.